Mr. S.L. Dhani's commendable study of Manavantra theory in the context of our scientific knowledge regarding the evolution of the universe is the first of its kind. Professor V.C. Pandey, Head of Department, AI History, Culture and Archaeology, Punjab University. I can continue. Just a moment. Mr. Dhani has only scratched the surface of the area which has tremendous potential for research. The Hindustan Times Evening News. Decorating the symbolism of the ancient theory of the evolution through the Manavantra, Mr. S.L. Dhani has compared the Puranic view with the modern using the etymology of the names of the Manavantras. The book is well written, the language is lucid and clear and easily understandable. The book is interesting throughout. That is, that it has gone through its second edition within 2 years of its first printing is a proof of its excellence. That was Proceedings of the Indian National Science Academy in 1976. The author presents a laudable story of the creation and evolution of our solar system based on his interpretations of the world meanings of the names of Manavantra as given in Vishnu Puran. Bulletins of the Theosophy Science Study Group, India. Commendable study of the Manavantra theory in the context of our knowledge is the first of its kind. It has the potential of a long-range research project to be owned and pursued by an interdisciplinary institution. Shri Dhani's interpretation of the Manavantra theory as the theory of evolution of solar system has created a stir in the intellectuals. The reluctance of the modern scientists to take up a detailed study of the Oriental scriptures is not in keeping with the true spirit of findings. It is not worthy of a seeker to discard and ignore everything ancient as superstitious. Vivekananda proved to be America and the world that Indian philosophy was supremely highest in the world. Dhani proves same for Indian science. On Indian freedom struggle, New Insight 2003, this work issues. चलो टाइम ज़्यादा है, मतलब कम है, इसको स्टॉप करो. Organizing such a seminar is a very tedious work. Firstly, I would like to tell everybody that particularly in our people, particularly in scheduled caste, where like most of the people, they gather only for political meetings or kind of things. Making a community meeting is a very tedious, and no one is interested, because nowadays everyone thinks in terms of money, time, these things. But for me particularly, people like Dr. S.L. Dhani, people like Dr. B.R. Ambedkar, who are inspiring, like they are the inspirations to us, because I know personally that I am a filmmaker, and I know personally that money matters nothing in society. Society matters, relationships matter, or seniors matters a lot. So whatever is the strength, our strength is here in numbers. I would like to request Dr. S.L. Dhani to start with this seminar, because we have already consumed so much time. So let us start with this seminar. Thank you, single lady and gentlemen. लैंग्वेज के बारे में सोचना पड़ेगा. अब तक का जो प्रेजेंटेशन है इंग्लिश में है, लेकिन उम्मीद ये थी कि इंग्लिश नोइंग लोग ज़्यादा आएंगे, जैसा ऑडियंस आएगी. अब हमें हिंदी अंग्रेजी का थोड़ा मिक्सचर करके चलना पड़ेगा. सबसे पहले मैं मिस्टर सबलानिया का धन्यवाद करूंगा
कि ये आइडिया इस किस्म के सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने का इनका था। इनका जो एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा है और बहुत तरह का है। इस तरह से इनकी जो ओपिनियन है किसी के बारे में भी, चाहे वो मेरे बारे में हो किसी और के बारे में हो, उसको हल्के में नहीं ले सकते। इसका मतलब चाहे इन्होंने मेरी प्रशंसा में कहा है, लेकिन जिस किसी की भी ये प्रशंसा करेंगे उसका कोई महत्व होगा, क्योंकि इसमें इनका जो अपना बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने बारे में कोई भी बात कही जाए तो उसको सेल्फ प्रेज माना जाता है, और उसके बारे में अंग्रेजी में कहा जाता है कि सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपनी बड़ाई अगर हम अपनी जुबान से करें तो उसमें कोई शाबाशी की बात नहीं है, क्योंकि ये तो आमतौर पर करता ही है। लेकिन इसके जवाब में एक मुझे बात याद आती है। हमारे बहुत पुराने फ्रेंड है कैप्टन बिश्नोई, यहाँ पर हाजिर हैं, जो एक किताब के को ऑथर भी हैं मेरे साथ, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के। तो एक आईएएस ऑफिसर होते थे बहुत पहले, उनका नाम था एसके सिन्हा। उन्होंने किताब लिखी थी अपनी बीवी के साथ मिलकर, और उसमें मेरी भी उन्होंने कुछ मदद ली थी। उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था जो यहाँ पर थोड़ा सा रेलेवेंट है। उन्होंने कहा था कि यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के बारे में अंग्रेजी में कहावत है, यू मस्ट नॉट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, मतलब अपनी तूती या अपनी बंसुरी या जो भी कुछ है वो अपने आप मत बजाओ। इस पर उन्होंने मजाक में कहा था उस किताब में कि आपको अपनी ट्रम्पेट खुद जरूर बजानी चाहिए, यू मस्ट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, क्योंकि अगर आप अपनी ट्रम्पेट नहीं बजाओगे तो आपके लिए कौन बजाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई और नहीं बजाएगा, क्योंकि हर आदमी अपनी ही ट्रम्पेट बजाने में बिजी है, मशगूल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अपनी बात नहीं कहेंगे तो आपकी बात कौन कहेगा। और फिर जितना ये राइटिंग का वर्क है, जितना स्पीकिंग का वर्क है, ये आमतौर पर वही आदमी करता है जिसके पास कुछ कहने को है। और जो आदमी कोई भी काम करता है, जो अपने बारे में वो आदमी जितना जानता है दूसरा आदमी नहीं जान सकता। और ये बुक्स भी जो इतनी ज़्यादा लिखी जाती हैं, चाहे बाबा साहब ने लिखी हैं, चाहे गांधी ने लिखी हैं, चाहे हमने लिखी हैं, किसी ने भी लिखी हैं, वो एक तरह से दुनिया के साथ बातचीत ही है। और इनडायरेक्टली हर आदमी जो भी लेखक है किसी न किसी सेंस में वो अपनी बात अपने बारे में कहता है, और उसका महत्व भी होता है। इन शब्दों के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी काम मैंने किया है, थोड़ा किया है, ज़्यादा किया है, अगर मैं नहीं बताऊंगा आपको तो कौन बताएगा। और अगर वो काम मैं आपको ना बताऊं और जब भी मौत आनी है आ जाए और वो बात मेरे साथ ही चली जाए तो उसका समाज को क्या फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब है कि जिस किसी के पास भी जो हुनर है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम इतने खुशकिस्मत नहीं हैं बाबा साहब जितने कि उनके जिंदा रहते हुए भी उनकी बात कहने वाले बहुत लोग थे, और मरने के बाद तो उनका कोई मुकाबला करने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ किसी का मुकाबला करने की बात नहीं है। हम बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं, और ये मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारा जो भी वीकर सेक्शंस है, और ये आपको सोचना पड़ेगा कि इस इंडिया में वीकर सेक्शन कौन नहीं है। हर जाति यहाँ की वीकर सेक्शन है। एक सेंस में ब्राह्मण को ऊपर मान सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय उसका टूल है, औजार है, गुलाम है, इसलिए वो
वीकर सेक्शन है। वैश्य बनिया पैसे के लिए उसने रखा हुआ है, तो वो ब्राह्मण का और क्षत्रिय का वीकर सेक्शन है। इन तीनों ने मिलकर शूद्रों को रखा हुआ है, जिसको आज कॉमन मासेज ओबीसीज कहते हैं, ये उनके हैं, तो ये उनके लिए वीकर सेक्शन है। इन चारों ने मिलकर दलितों को रखा हुआ है एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, सप्रेशन के लिए, तो उनके लिए वो वीकर सेक्शन है। इसी तरह से जब आप आगे भी बंटवारा करें, इस तरह से बहन मायावती बहुत तरक्की कर गई है, लेकिन जैसा उनके बारे में ख्याल है कि वो केवल एक कम्युनिटी के बारे में ध्यान रखती हैं और वो चमार कम्युनिटी है, और जब ये बात सामने आती है तो आज नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, यानी हमारा आइडिया किसी का बुराई करना नहीं है, बल्कि एक पॉइंट लेना है। अब उनको पॉलिटिकली अपोज करने के लिए एक डॉक्टर उदित राज उठे हैं, वो खटी कौम को लेकर उठे हैं। कुछ और लोग हैं, वो कोई वाल्मीकि कम्युनिटी कर लिखे हैं, यानी उनको लेकर उठते हैं। तो इसका मतलब है कि आपस में अपनी अपनी ताकत को वो काटते जाते हैं। कहने से मतलब ये है कि जो भी यहाँ ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों में आप अगर जाएं, फॉर्चुनेटली मैं हर कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलता रहता हूँ और जिसकी खाट खड़ी करता हूँ वो लोग मेरी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। ये जितनी मेरी बुक्स हैं इनके ऊपर जितने फॉरवर्ड्स हैं सारे ब्राह्मणों ने लिखे हैं। जितने बहस हुई है मनुस्मृति के ऊपर मेरी किताब आई, कैप्टन साहब को मालूम है, 4 महीने द ट्रिब्यून ऑफ चंडीगढ़ 4 महीने उसके ऊपर बहस होती रही। पहला तो उसने रिव्यूअर ने लिखा कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है ही नहीं, एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए है ही नहीं है, और ये इसका आदमी का दिमाग खराब हो गया है। मनुस्मृति जैसी किताब को उसने वो इतना धत्ता बता दिया है। लेकिन 4 महीने में अल्टीमेटली मेरे खिलाफ कहने वाला एक भी आदमी सारे भारत में पैदा नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम उन ऊपर तथाकथित ऊपर वाले कम्युनिटीज में भी जाकर देखें, हर कम्युनिटी रोती है। यहाँ पर ब्राह्मणों के आप अगर किसी सभा में जाकर देखें, ब्राह्मण भी उतने ही रोते हैं जितने दलित रोते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। उस सेंस में जो वीकर सेक्शंस है, उस एंगल से अगर हम देखें तो हर आदमी वीकर सेक्शन है। और जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, हमारे अंदर ताकत की भावना भी नहीं आएगी। जब तक हम समझते हैं कि हम ही वीक हैं, हम क्या करें, ये एक बात है। और अगर आपको पता है कि जिसको आप ऊंचा मानते हो वो भी रो रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है।